very sorry to be late. I know people are waiting to start our fellowship this evening. God's your greatness is always with us. I really want to thank our New Life Fellowship and Pastor Matesh for giving me the opportunity to sing and praise His name. Thank you. We should stand up together on your feet who are watching me online. Let's rejoice His name because He is great. Lord, we lift up your name with your heart full of faith. We exalt it, O Lord our God. Hosanna in the highest. Say glory, 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 glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. We exalt thee, O Lord our God. Hosanna in the highest. One more time. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name. With a heart full of praise, with a heart full of praise. We exalt thee, O Lord my God. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Oh, we sing your hallelujah. तू ही है मेरा, मेरा सब मेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सब मेरा, तेरे सिवा है कोई मेरा।
Everybody clap hands together. On your feet, rise up. Are you trading your sorrow? Are you trading your pain? We say yes, Lord. Yes, Lord. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. One more time. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling as the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling as the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh,
praise your name. You are the greater, 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 greater. I can feel the presence is moving around each one of the places around you. I pray to God this evening who are listening to us and hearing to us, Father, bless them, anoint them with your Spirit. I pray to you, Father, this evening. I really praise you, God. You're awesome, Father. I pray to you, God, Jesus. Amen. Hallelujah. तू मेरा भला है प्रभु, तू सचमुच भला है प्रभु, तू सचमुच मेरे लिए भला है। तू जहाँ पर मैं चलता हूँ, जाता हूँ, तू मेरे साथ चलता है। तू सचमुच है भला मेरे लिए। Praise you, Jesus. जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबूत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबूत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू
praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, really, my world needs you, Lord. We need you, Lord. We really need you, Lord. Now, and forever. I praise you, Jesus. Show me your face. Fill up the space. My world needs you right now. My world needs you right now. I can't escape being afraid. Fill me with you right now. My world needs you right now. Show me your face. Fill up this space. My world needs you right now. My world needs you right now. Oh Jesus, Jesus. Power fall down. Bring me the sound that point us to you right now. You raise altitude right. Fix what I see, and God fix with me. Let us use you right now. Oh Jesus, power fall down, bring it down, that point us to right now. Erase attitude right now. Fix what I see, and God please fix me. My world needs you right now. Let us see you right now. Show me your face. Fill up the space. My world needs you right now. My world needs you right now. I can't escape being afraid. Fill me with you right now. My world needs you right now. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. We praise you, Jesus. How I know you, Lord Jesus Christ. We praise you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and your grace, Lord. Thank you for your praise and worship to seek from Father. Bless each one of us. Thank you, Lord. Amen. Praise and worship. Thank you so much. Now I will welcome Brother Surik to share the word of God. Amen. सबको जय मसीह की और धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का कि उन्होंने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखा हुआ है अभी भी। और धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से पास्टर रितेश का, जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया एक बार फिर से काफ़ी समय के बाद। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने हम सबको संभाले हुए रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वक्त जो कोई भी इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, सब आप लोग परमेश्वर के उस महिमा के धन के अनुसार आप लोग सब कोई भले चंगे स्वस्थ होंगे। और धन्यवाद देते हैं सिल्वेस्टर भैया का, जिन्होंने इतने अच्छे से इतने ब्यूटीफुली बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वर्शिप को कंडक्ट किया। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का, ये वो जो हमें अपना महिमा का धन देता है, वो मसीह यीशु में हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद देते हैं एक बार परमेश्वर का फिर से। आइए से हम लोग पहले की वचन में चले। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है इब्रानियों उसका 1:3 अध्याय, जहाँ पे ऐसा लिखा है
वहां ऐसा लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने में जा बैठा है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह से उनकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप यानी परमेश्वर की जो छाप है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में दिखाई है उस बातों को। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमारे सामने रखा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। वो इस बात को बहुत ही साफ रीति से कहते हैं और वो अपने और हर एक वस्तुओं को वो अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और वो क्या करता है, वो हमारे और वो पापों को धोकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ पे वो तमाम बातों को देखता है, जहाँ पे वो तमाम बातों को सुधी लेता है और जहाँ से वो रहकर बाप आसमानी से उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर से हमारे लिए बातें करता है, हमारे लिए दुआ करता है। आज का वचन जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आज का जो रविवार है वो आज खजूर रविवार हम लोग इसको कहते हैं और हम लोग जानते हैं कि आज के दिन में किस तरह की बातें हुई थी कि कैसे लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे और कैसे वो जब उस गधी के बच्चे पर जब बैठकर जब जा रहा था प्रभु यीशु मसीह, लोग उसके सामने कपड़े को बिछा रहे थे, खजूर की डालियां तोड़ कर और उसे हिलाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे कि होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर का कि वो जो हर एक बातों को हमारी जिंदगी में करता है वो हमारे भले के लिए करता है, हमारे नुकसान के लिए कभी नहीं करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि फॉर द प्लान्स व्हाट आई हैव फॉर यू इज टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, द प्लान्स टू गिव यू फ्यूचर एंड होप। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23 वर्स 11 इट सेज लाइक दैट। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतना अच्छा सा इतना खूबसूरत शाम हमारे बीच में रखा है कि एक बार फिर से हम उसके सामने उसके सम्मुख बैठ सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं और अपनी तमाम बातों को हम उनके सामने कह सकते हैं, उन तमाम बातों को उनके सामने हम रख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इस वक्त आप में से जो कोई इस वक्त देख रहा है इस वक्त कैसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, मैं इन बातों को नहीं जानता हूँ, पर एक बात याद रखिए, कोई जाने ना जाने, एक है जो जानता है और उसका जानना काफी है कि आप किन बातों से होकर गुजर रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता जानता है कि इस वक्त हम में से हर एक जो यहाँ बैठा है और जो इस वक्त उस स्क्रीन में है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो इन तमाम बातों को जानता है। ब्रदर्स और सिस्टर्स, हमारे मेरे मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लोग वो जानते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता जानते हैं कि आप इस वक्त किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। वो जानते हैं इस बात को कि आप कैसे हालातों से का सामना कर रहे हैं, कैसी कमियों का सामना कर रहे हैं और अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये बात भी परमेश्वर जानता है और उसके सम्मुख कोई भी बात नामुमकिन नहीं है क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक बातों को जानता है, ऐसी कोई बात नहीं जो उसके सम्मुख नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं जो उससे छिपी है। यहाँ तक कि अंधकार भी उससे कोई भी बात छिपा नहीं सकता है। अंधकार भी हमारे प्रभु परमेश्वर के सामने रोशनी के समान ही है। दाऊद कहता है कि अगर मैं अंधकार में जाके छुप जाऊं तो भी अंधकार जो है वो रोशनी के समान है। अंधेरा भी मुझे तुझसे छिपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों और बहनों, मसीह में मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बात को कि आज की शाम आप यहाँ पे बैठे हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई इसका वजह होगा और वजह कुछ नहीं है। वजह बस इतना है कि परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है, परमेश्वर ने आपसे बातें की, आप इस वीडियो को देखें, परमेश्वर ने आपसे इन बातों को सामने रखा है। मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरे बहनों कि आज जिस तरह की परिस्थितियों से होकर हम गुजरते हैं और जिस तरह की बातों से होकर हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर इन बातों को जानता है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ इस वक्त कि जो दुनिया में जो बातें चल रही हैं उनमें से एक बात है कि जब हम लोगों से बातें करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं,
तब तक तो सब ठीक है, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब चीजें बिगड़ जाती हैं या चीजें जब बिगड़ना शुरू होती हैं और उस वक्त हमारे दिलो दिमाग में एक सवाल होता है कि इसे तो और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता था। इतना बुरा व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? इतने बुरे शब्द यूज करने की क्या जरूरत थे? किसी थर्ड पर्सन के पास क्यों जाना पड़ा? ये तो बैठकर बातें शांति से भी हो सकती थी, म्यूचुअल भी ये बातों को देखा जा सकता था। मैं आज जो वचन आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो ये है कि हम जब लोगों से मिलते हैं और जब रिश्तों में खटास आती है, जब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं? लोग एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, लोग एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, लोग श्राप देते हैं एक दूसरे को और कहते हैं कि इससे भला होता कि तू मर जाता, तू भाड़ में जा, तू मरे जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो जी में आए कर, मुझे देखना नहीं है तू खाए या तू ना खाए, तू पिए या तू ना पिए, तू जिए या तू ना जिए, तू अगर अभी इस वक्त मर भी है तो भी मैं तेरा परवाह ना करूं। और हम लोग बहुत दुख की बात है कि हम लोग ऐसी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, यहां तक कि कहते भी हैं। पर मेरे प्रियो, हम और इस बात का सामना भी करते हैं कि लोग शाप देते हैं, लोग कर्स करते हैं, लोग बुरा कहते हैं। और जब हम लोग देखते हैं इस शाप की बात को, तो शाप जो होता है वो कभी किसी के भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि श्राप का मतलब ही यही है कि किसी के लिए बुरा चाहना। आज हम और आप कैसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं? आज हम और आप कैसी बातों का सामना कर रहे हैं? क्या किसी ने आपको शापित किया है? क्या किसी ने आपको शाप दिया है? क्या आपने किसी को शाप दिया है? श्राप का मतलब यही है कि हम बुरा चाहते हैं किसी का। श्राप का मतलब यही है कि हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करके चाहते हैं कि ऐसी लालसा करें। सिर्फ बुरे शब्दों का प्रयोग करना ही श्राप नहीं है, सिर्फ बुरे शब्दों का प्रयोग इस भावना से करना, इस एक्सप्रेशन के साथ करना कि इस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, या उसका बुरा चाहना, उसका नाश हो जाना। मेरे प्रियो, हम लोगों ने जैसे देखा भी होगा, कई दफा जब लोग टीवीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो वहां पे दिखता है कि जो सबसे बुरे लोग होते हैं वो लोग शुरू में ऐसे कहते हैं कि कीड़े पड़े तुझे, मेरा काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। लोग इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं, लोग ऐसी बातों को कहते हैं। पर मेरे प्रियो, जिस बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि श्राप। मेरे आज के बोलने का टॉपिक, मेरे आज इस विचार का टॉपिक ही यही है कि परमेश्वर जो है हमसे आज क्या बात करना चाहता है इस श्राप के माध्यम से। वो हमसे क्या कहना चाहता है, वो किन बातों को हमारे नजदीक रखना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोगों में बहुत तरह की बातें आती हैं। और जब हम लोगों से मिलते हैं तो शुरू में ऐसी बातें होती है मिलने के पहले कि नहीं, वो ऐसा है, वो इस तरह का व्यक्ति है, वो बुरा है, वो बहुत ही गंदा है, वो एक क्रिमिनल है। ऐसी बातों को हम लोग सुनते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी बातों से होकर हम और आप कभी ना कभी जरूर गुजरे होंगे। वचन कहता है कि जो परमेश्वर है वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करता। लेकिन हम मनुष्य में ऐसा होता है, गरीब अमीर, अच्छे लोग बुरे लोग,
अधर्मी, पापी, नीच जाति। मेरे प्रियो, प्रेरितों की किताब उसका 10 अध्याय, वहां पे हम लोग एक घटना को देखते हैं जहां पे परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से कहता है। आइए इसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 1 से हम लोग देख रहे हैं। वहां पे लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उस दिन तीसरे पहर के निकट दर्शन में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि एक परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और उसके पास उपस्थित रहा करते थे, जो उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर उसने दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, तू उसे शुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे देखा और कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से एक चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जोह रहा था। जब पतरस भीतर आया तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर पड़कर प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ।
और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर आया और बहुत से लोग इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। इसके बाद पर पतरस ने कहा, 34 अध्याय में ऐसा लिखा, 34 और 35 वचन में ऐसा कहता है कि तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह बात तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम लोग यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो कि कुरनेलियुस एक इतालियानी, जो वहां पे एक सैनिकों का जो समूह था, एक इतालियानी पलटन का जो एक सूबेदार हुआ करता था कुरनेलियुस। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने ये जो कुरनेलियुस है और परमेश्वर ने कुरनेलियुस के मन में अपना कैसा भय रखा था कि ये जो कुरनेलियुस था, ये जो था ये परमेश्वर का भय मानता था, न कि सिर्फ खुद भय मानता था, बल्कि वचन कहती है कि ये अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर का वचन को और परमेश्वर का भय मानता था। और दूसरी बात, ये यहूदियों को क्या करता था, ये ऑफरिंग दिया करता था, ये दान दिया करता था। और परमेश्वर का भय, सबसे बड़ी बात, ये परमेश्वर का भय अपने मन में रखता था। मेरे प्रियो, यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है कि कुरनेलियुस जो था वो एक अन्य जाति था। और जैसा हमने देखा है कि वचन जैसा खुद बताता है कि पतरस जब वो इससे पहले कि वो कुरनेलियुस से यहाँ जाता, वो किसी के यहाँ पे पाहुन था, मतलब ये वो किसी के यहाँ पे ठहरा हुआ था। और जब वो छत पर था और छत पर जब शायद दुआ ही कर रहा होगा वो, तब उसको आकाश में चादर फैला हुआ दिखाई देता है। और तब उस वक्त वो पतरस देखता है, अपनी आत्मा को महसूस करता है कि उसे भूख लगी है। और तब देखता है कि वो चादर जो है आसमान से नीचे की तरफ आता है और पतरस को कहता है बार बार कि हे पतरस, मार और खा। हे पतरस, उठ, मार और खा। हे पतरस, उठ, मार और खा। ये बातें उसे 3 बार सुनाई देती हैं, लेकिन पतरस कहता है कि मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि यह शुद्ध है। मेरे प्रियो, अगर हम पुराने नियम की किताबों को पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे जानेंगे कि परमेश्वर ने इजरायलियों को हिदायत दी थी कि हमें कैसे पशुओं को खाना है और किस तरह के पशुओं को हमें खाने से परहेज करना है। तो हो सकता है मेरे प्रियो कि वो जो चादर होगा, शायद वहां पे वैसे पशुओं को उसने देखा होगा जिसको परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार अशुद्ध ठहराया था। और जब पतरस, जो कि खुद एक यहूदी था, पतरस ने जब उन बातों को देखा तो पतरस क्या करता, वो उन बातों को देखकर कहता है कि मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि यह अशुद्ध है। लेकिन परमेश्वर की वचन उसे सुनाई देते हैं, फिर सब कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है उसे तू, हे पतरस, अशुद्ध मत कर। परमेश्वर जिसने खुद इन बातों को शुद्ध ठहराया है, तू उसे अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा होता है, लेकिन तीसरी बार के दफा के बाद वो क्या होता है, वो वहां से उठ के चला जाता है, वो चादर खींच लिया जाता है ऊपर में। और ठीक उसी वक्त जब वो इन बातों को, दर्शन की बातों को जब वो सोच ही रहा था, तभी कुरनेलियुस ने
उन 3 व्यक्ति को जो भेजा था कि जाके पतरस के पास जाओ और पता करो कि वहाँ कहाँ रहता है और उसे लेकर आओ हमारे यहाँ पे। तो जब इन बातों को पतरस सोच ही रहा होता है, इन दर्शन की बातों को, विषय को जब वो सोच ही रहा होता है, तब उस वक्त हम पाते हैं कि वचन कहता है कि वो 3 व्यक्तियों को जिसे कुरनेलियुस ने भेजा था, वो उसके डेवढ़ी के पास आके उसका इंतजार करते हैं और पूछते हैं पतरस के बारे में कि पतरस क्या यही ठहरा हुआ है जो कैफा भी कहलाता है, जो पतरस भी कहलाता है। और तो हम लोग मेरे प्रिय वहां पे देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने कार्य को करता है। और पतरस उन लोगों के साथ होकर चला जाता है और उन लोग के साथ जाने के बाद वो कुरनेलियुस के साथ रुकता है, कुरनेलियुस के घर के यहाँ आता है वो, और कुरनेलियुस के घर में बहुत सारे लोग जमा होते हैं। और जब वहां पे पतरस इतने सारे लोगों को देखता है तो वो उससे अपने आने का विषय पूछता है और कुरनेलियुस उसे तमाम बातें, पूरी बातें उसे बताता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर कुरनेलियुस से बातें की और उस बात को गवाही के सामने, पतरस के सामने रखता है। और तब हम लोग ये पाते हैं कि पतरस जो कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था, वो खुद इस बात को कहता कि तू जानता है कि यहूदियों के यहाँ कोई भी अन्य जातियों से संगति करना मना है। आज भी हमारे समाज में हम पाते हैं कि ऐसे कुछ समाज के वर्ग हैं जहाँ पे एक लोग दूसरे लोग के साथ किसी तरह का कोई बर्ताव नहीं रखते, छुआछूत मानते हैं, कहते कि नहीं, इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, इन लोगों से हमारा कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि पतरस इस बात को सामने रख के कह रहा है कि तू जानता है कुरनेलियुस कि हम लोगों के साथ अन्य जातियों का कोई मेल जोल नहीं है, पर अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे आप अमीर हो, रईस हो, गरीब हो, कंगाल हो, आप चाहे समाज में एक बहुत ही इज्जतदार इंसान हो या एक समाज में एक ऐसा इंसान जिसकी कोई इज्जत नहीं है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। और इस विषय को आपके सामने, इस वचन को सामने रखकर मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि दया करके आप ऐसी भावनाओं से होकर ना गुजरे जो आपको कमजोर करती है, जो आपको ऐसा बताती है कि आप कितने कमजोर हैं। आप हीन भावना से होकर गुजर रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे की तंगी है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को कि आप किस कमी से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को जब अपना वचन आपके पास भेज के आपको बचाना होगा, वो जरूर ऐसा करेगा। और परमेश्वर वचन बताती है कि वो मुसीबत के समय मुस्ताद मददगार है, वो संकट के समय अति साथ से मिलने वाला हमारा सहायक है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं इस वक्त जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप इस बात को सोच रहे होंगे कि भाई ने अभी इस वक्त शुरू किया था कि वो शाप के बारे में बताएंगे, पर ये शाप से डाइवर्ट होकर वचन जो है वो अन्य जातियों की तरफ जा रहा है। ये वचन जो है वो एक बात की तरफ बता रहा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, इस वचन को सामने रखना इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि जो परमेश्वर का वचन जो है वो हर एक के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान या सिख या ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ऐसे समाज से कि आप शूद्र हैं, एक ऐसे समाज का हिस्सा है जो कि बहुत ही निम्न है। परमेश्वर वचन आप सबके लिए है। मेरे प्रियो, शाप अंग्रेजी में सब कहते हैं कर्ज, उर्दू में से कहते हैं लानती देना या लानत करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन ऐसा कहता है व्यवस्था की किताब में
और जब व्यवस्था की किताब को जब देखेंगे उसके 28वें अध्याय में जो है उस 28वें अध्याय को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे वहाँ पे कि जो परमेश्वर का जो वचन है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसमें वहाँ पे लिखा है। वहाँ पे दो तरह की बातों को आप देखेंगे मेरे प्रियो। वहाँ पे एक बात को आप देखेंगे कि परमेश्वर आशीषों के बारे में इस्राएलियों को बता रहा है और दूसरी तरफ में मूसा जो है परमेश्वर जो है मूसा के माध्यम से श्रापों को लोगों के सामने रख रहा है। और वहाँ पे अगर हम वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे लिखा है व्यवस्था की किताब उसका 28 अध्याय और वहाँ पे ऐसा लिखा है उसके 22 अध्याय से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का वचन किस तरह के बारे में किस तरह शाप के बारे में क्या क्या बता रहा है। वहाँ पे 22वें अध्याय में ऐसा लिखा है व्यवस्था उसका 28 अध्याय उसका 22वां अध्याय उसका 22वां वचन ऐसा कहता है कि यहोवा तुझे क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन और तलवार से और झुलस और गेरूई से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश ना हो जाए। तेरे सर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। परमेश्वर ऐसा कहता है आगे शाप के बारे में, यानी व्यवस्था की किताब उसका 28वें अध्याय में हम तमाम तरह के शापों को देखते हैं और वहाँ पे मैं कुछ शापों का अपने सामने रखना चाहता हूँ कि शाप किस तरह के शाप परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखते हैं। और वहाँ पे लिखा 25वें अध्याय में कि यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उसका सामना करने को जाएगा परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। परमेश्वर ऐसा कहता है ये शाप जो है हम लोग यहाँ और कुछ शापों को देखेंगे हम लोग यहाँ पे उसका 35 अध्याय उसका 35 वचन यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिख तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। तू खेतों में बहुत सा बीज ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही काटेगा क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। तू दाख की बालियां लगाकर उनसे काम तो करेगा परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों को मानने को और उसकी ना सुनेगा इस कारण ये शाप तुझ पर आ पड़ेगा और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे अंत में तू नष्ट हो जाएगा। हम लोग और कुछ यहाँ पे देखेंगे परमेश्वर वचन शापों को क्या कहता है उसका 60, 61 और 66 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ से लिखा है कि वह मिस्र के उन सब रोगों को तेरे ऊपर फिर ला देगा जिनसे तू भय खाता था और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक ला देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। मेरे प्रियो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था की किताब यहाँ पे तमाम तरह के शाप के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर इन तमाम बातों को बता रहा है कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञा ना माने अगर तू परमेश्वर की इन बातों को ना सुने तो परमेश्वर तुझ पे ऐसी ऐसी विपत्तियों को लाएगा, परमेश्वर तेरे पास ऐसे ऐसे शापों को तुझ पर लाएगा। और मेरे प्रियो ये बातें ये वचन खुद परमेश्वर के हैं जिन्हें उस वक्त परमेश्वर ने अपने दास मूसा के सामने रखा और मूसा के ही द्वारा बातें कर उन इस्राएलियों को सुनाया कि परमेश्वर का वचन अगर वो लोग नहीं मानेंगे अगर वो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करेंगे तो वो ऐसी ऐसी बातों को हमारे सामने रख देगा, वो ऐसी ऐसी बातों को हमारे सामने ला देगा।
ये इन तमाम तरह के शाप हैं। और सच बताएं मेरे प्रियो, अगर हम लोग इस शाप के वचन को अगर हम लोग सुने और मेरे प्रियो अगर हम लोग बहुत ध्यान देकर हर एक वचनों को उसको अगर हम लोग पढ़ें, तो मेरे प्रियो ये वचन सच में डरा देने वाले हैं कि इस तरह के फोड़े, इस तरह की बातों को अगर हमारे अपने शरीर में अगर हम पाएं तो किस तरह की तकलीफें होंगी। हम याद करते हैं अगर जब बात आती है बॉयल्स की, जब बात आती है फोड़ों की, जब बात आती है फंसियों की या जलन की या तमाम बातों की, तो मेरे प्रियो इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अय्यूब जब वो अपने जिंदगी के बुरे दौर से होकर गुजर रहा था और जब उसके शरीर में ठीकरे थे और जब उसके शरीर में फोड़े थे और जब वो एक राख पर टाट होकर बैठ गया था ताकि राख से अपने फोड़े फुंसियों को, घावों को खुजला सके, तो उस वक्त उसकी अपनी पत्नी भी कहती है कि तू अब तो अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को कोस, अब तो उसे अपना मुंह खोलकर तू उसे भला बुरा कर, अब तो तुझे भला बुरा कर, कुछ तो कर, अपना मुंह खोलकर उसे शाप दे, उसे कोस, परमेश्वर को तू कोस। लेकिन मेरे प्रियो वचन कहता है कि अय्यूब अपनी पत्नी से कहता है कि तू मूर्ख स्त्रियों की सी बातें करती है। जिस परमेश्वर के हाथ से हम दुख लेते हैं, जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? मेरे प्रियो, जब हम किसी शाप से होकर गुजरते हैं, शाप मतलब जब लोग हमें शाप देते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो जाना चाहिए, तुम इस लायक हो, तुम्हें पीटा जाना चाहिए, तुम्हें पत्थरों से मारा जाना चाहिए, तुम्हें पत्थरवाह किया जाना चाहिए। मेरे प्रिय, कई दफा हम लोग खुद अपने आप को अपनी जबान से कई दफा हम लोग शाप दे देते हैं। अब मेरे प्रिय, सबसे भयानक बात है कि इस परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, हम इस बात को भूल जाते हैं और अपने आप से हम इस बात को कहते हैं कि भला होता कि हम मर जाते हैं, भला होता कि हम इस संसार में नहीं होते। इस बात का न्याय करने का अधिकार ना तो मेरा है ना तो आपका है, हम में से किसी का इस बात का अधिकार नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है और हम उसी जिंदगी को कोस रहे हैं जो जिंदगी को परमेश्वर ने हमें दी है, और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को खुशनुमा आशीषित बनाया है। हाँ, जिंदगी में दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, पर वो दुख तकलीफ आएंगी ताकि हम अपने उस चरित्र में बढ़ सके जो प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए। मसीह में हमारा जो कैरेक्टर होना चाहिए, वो कैरेक्टर जो हमारा क्राइस्ट में होना चाहिए, ताकि वो ग्रो कर सके और वो हम फल ला सके जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस फल को लाएं। मेरे प्रियो, ये शाप था, ये शाप है, लेकिन धन्यवाद देते हैं हम लोग अपने महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता का कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए अर्पण कर दिया। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता का कि उन्होंने हमारी ऐसी योजना बनाई कि उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए भेज दिया। जिस रोगों से, जिस शापों से, जिस तकलीफ से होकर हमें गुजरना था, वो स्थान जो हमारा था उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वापस आने की आज्ञा मानकर ले लिया। उस क्रूस की मृत्यु को, हाँ मेरे प्रिय, उस क्रूस की मृत्यु को भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया हमारे और आपके लिए। मेरे प्रियो, मैं इस बात को अपने सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप इस वक्त जहां कहीं भी हो, जिस हालात में, मैं जानता हूं कि आप लोग शायद इस वचन को सुन सुनकर थक गए होंगे कि अरे बहुत सुना है कि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है और उसने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया हमारे लिए। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि अब ये जो शाप है, ये शाप अब हमारे दरमियान में नहीं है। क्योंकि
मेरे प्रियो, जब हम बात कर रहे हैं श्राप की, और जब इस बात को हम देखते हैं कि हम में से, और वहाँ पे एक वचन को साफ साफ लिखा है कि अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा ना माने, यदि हम परमेश्वर की दी हुई विधियों पर ना चले, यदि उसके बातों को हम इनकार करें, तो ये सारे श्राप जो लिखे हुए इस व्यवस्था की पुस्तक में हम पर आ जाएंगे। और मेरे प्रियो, हम और आप इस बात के गवाह हैं कि हमने परमेश्वर की आज्ञा कितनी बार मानी है। मेरे प्रियो, हमने अपनी जिंदगी के इस दौर में हो ना हो, हमने परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं तोड़ा है, उसकी आज्ञाओं को हमने कभी ना कभी इनकार किया है। परमेश्वर वचन हमारे अंदर एक आवाज बन के रहता था कि ये जो तुम कर रहे हो गलत करो, उसको ठीक करो, लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर की उस बात को ना मानकर हमने अपने इस काम को किया। हम जो चाहते थे हमने किया, न कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता वैसा किया। मेरे प्रियो, हम गुनहगार हैं, और वचन बताती है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया। परमेश्वर वचन ऐसा कहता है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। We all have fallen short. We all, हमने परमेश्वर के वचन को नहीं माना है, कई दफा इनकार किया है, माफी नहीं दी है, गलत व्यवहार किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो हमें एक मसीही होने के नाते कतई करने नहीं चाहिए थे, पर हमने ऐसा किया है। हम लोग देखते हैं गलतियों की किताब उसका 3:13 में परमेश्वर वचन क्या कहता है। बुक ऑफ गैलेशियंस अध्याय और उसका 13 पद। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से सुने। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर परमेश्वर ने व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। इस व्यवस्था के श्रापों को हमने अभी अभी देखा है कि व्यवस्था की किताब में उसका 28 अध्याय में तमाम श्रापों को लिखा है। उस व्यवस्था की किताब को 28वें अध्याय को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, जहाँ पे एक तरफ आशीष और एक तरफ श्राप के वचन लिखे गए हैं, लानत के वचन लिखे गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, उसने तमाम श्रापों को, उसने तमाम श्रापों को, जो भी श्राप आपको मिला है, जो भी गंदगी, जो भी बुराई, जो भी रोग, जो भी श्राप आपको मिला है, इन तमाम बातों को मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लेकर, न कि सिर्फ क्रूस पर लिया हमारे रोगों को, न कि सिर्फ क्रूस पर लिया हमारे तमाम बातों को, बीमारियों को, डर को, तमाम चीजों को, बल्कि इसके साथ साथ उसने उन तमाम श्रापों को भी लिया अपने ऊपर और उस क्रूस पर, और वो उस क्रूस पर हमारे और आपके लिए वो श्रापित बना। और परमेश्वर वचन वहां लिखा है कि वो श्रापित बना हमारे लिए, वो श्रापित बना हमारे लिए। और व्यवस्था में जो तमाम तरह की बातें लिखी, जो श्राप जो लिखे हैं, उनसे हमें क्या किया? हमें मुक्त किया, हमें छुड़ाया, हमें वहां से बाहर निकाला। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय, और परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने हर नाम से ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने
प्रियो, आज आप कैसी बातों से होकर गुजर रहे हैं? किसने आपको लानत दी है? किसने आपको शाप दिया है? किसने आपसे बुराई करी है? मन में, जबान से किस तरह से आपको लानत देने की कोशिश की है? मेरे प्रियो, याद रखिए इस बात को जो लिखा है यहाँ पे, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। परमेश्वर शापित बना हमारे लिए। देखिए, जो बीमारी है और जो रोग होते हैं मेरे प्रियो, ये शाप से अलग नहीं है, ये शाप का हिस्सा है, क्योंकि ये शाप का ही एक भाग है। ये शाप का एक भाग है और परमेश्वर हमारे लिए ऐसा बन गया कि वो खुद शापित बन गया, और वो ऐसा शापित बना हमारे लिए ताकि वो तमाम शाप हम पे हट जाए और वो तमाम आशीषें हम पर आ जाए। परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए उसे शाप बना दिया। वो उसे हमारे लिए शापित किया ताकि हम आशीष बन जाएं, ताकि हम और आप आशीष बन जाएं। इसलिए अब देखेंगे इस वचन को जो लिखा है वहां पे कि तुम जिसे शाप दोगे वो शापित होगा, तुम जिसे आशीष दोगे वो आशीषित होगा। और परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। दूसरा कि तुम लोग वचन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है याकूब उसका 4 अध्याय, वहां लिखा है याकूब उसका 4 अध्याय, वहां पे लिखा है 9 वचन में, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। 8वां वचन ऐसा लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुष्चित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। 7वां वचन ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, 9वें वचन पे फिर से देखिए, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसी, तुम्हारा जो हंसी है वो शोक में बदल जाएगा और तुम्हारा जो शोक है वो हंसी में बदल जाएगा। अपने हाथों को परमेश्वर कहता है हमें शुद्ध करने के लिए। परमेश्वर यह कहता है कि तुम्हारा आनंद जो है वो उदासी बदल जाएगा, तुम्हारा हंसी शोक बदल जाएगा। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? खुदावन वचन 10वां इसका जवाब देता है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। और प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे और आपके लिए इतना दीन कर लिया कि परमेश्वर ने उससे ऊंचे पर चढ़ाया। मेरे प्रिय, ऊंचे पर चढ़ाने का मतलब सिर्फ काट पर लटकाए जाने का मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसे वो स्थान दिया, अपने दाहिने हाथ पे उसने स्थान दिया और तमाम अधिकार, तमाम वस्तुएं उसके अधिकार में कर दी। मेरे प्रिय, वचन लिखता है यहाँ पे 8वां वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पापियों, हे पापियों, अपने हाथों को उसके लहू से शुद्ध करो, अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो लो। हे दुचित लोग मतलब ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप में शंका करते हैं, जो अपने आप में शक करते हैं। दुचित लोग हैं, इनका चित्त एक तरफ नहीं होता, इनका एक चित्त होता है एक तरफ, दूसरा चित्त होता है दूसरी तरफ। ये हाँ की तरफ भी होते हैं, ये ना की तरफ भी होते हैं। ये निर्णय को नहीं ले पाते कि जाना है या नहीं जाना है। ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि इस काम को करना है या नहीं करना है। ये इस बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन परमेश्वर कहता है उनके लिए भी कि हे दुष्चित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो।
लेकिन मेरे प्रियो, इससे पहले कि अपने हृदय को पवित्र करें, एक निर्णय लीजिए आज कि जिस प्रभु ने अपने आप को हमारे और आपके लिए स्थापित किया, उस परमेश्वर के निकट हम और आप आए। क्योंकि पहले जैसा लिखा है कि अगर हम निकट आएंगे तो वो निकट भी आएगा हमारे, लेकिन पहले हमें पहल करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात की पहल कर दी है कि उसने हमसे प्रेम रखा इससे पहले कि हम उससे प्रेम रखते। पहला निर्णय वो ले चुका है, लेकिन अब ये दूसरा निर्णय हमारा है कि हम उसके निकट आएंगे या हम उसके निकट नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के निकट आना चाहते भी हैं? मेरे प्रियो, आप किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर के निकट आकर अपने आप को दीन करते हैं, वचन कहता है आपको शिरोमणि करेगा परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटों को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, बल्कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसे क्रूस की मृत्यु को दे दी। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, जो किसी बात को नहीं जानता था, किसी गुनाह को नहीं जानता था, उसने हमारे और आपके रोगों को ले लिया, और वो रोग जो है वो शाप का हिस्सा है, वो हमारे और आपके लिए शापित बना, ताकि हम और आप आशीषित हो जाएं। और न कि सिर्फ हम और आप आशीषित हो जाएं, बल्कि हम और आप एक आशीष बन जाएं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि शायद आपके मन में एक अजीब से भय ने साया करके रखा हुआ है, और आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे। हो सकता है कि आप वचन किसी के कहने मात्र से बहुत तकलीफ में आ जाते होंगे। हो सकता है कि आप शब्दों से बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, किसी के वचन आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, आपको बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, और ये साफ लिखा है कि आप उसके निकट आए तो वो आपके निकट आएगा। हम लोग एक गीत को गाते थे, डॉन मोएट का गीत था, वहां पे ऐसा लिखा है, इफ यू ड्रॉ नियर टू हिम, ही विल ड्रॉ नियर टू यू। ड्रॉ नियर टू हिम, ही विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर का वचन जो मेरे दोस्तों, ये हम सब के लिए है मेरे प्रियो। और एक बात को भूले मत, इस बात को कहीं मत भूले कि जो शाप है, मसीह हमारे लिए शापित बना है, हमारे और आपके लिए। उसने हमारे तमाम रोगों को, हमारे तमाम भय को, नकारात्मकताओं को, बीमारियों को, रोगों को, शापों को। अब ये रोग और ये जो बीमारी होती है मेरे प्रियो, ये सिर्फ शारीरिक नहीं होती। कोई तन का रोगी होता है, कोई मन का रोगी होता है, कोई धन का रोगी भी होता है, लेकिन हाँ, रोगी होता जरूर है, और अगर रोगी है तो होता है तो रोग के कारण होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे उन तमाम रोगों को उस क्रूस पर ले लिया। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए शाप बना दिया, ताकि हम आशीषित बन जाएं। उसने तमाम रोगों को हमारे लिए ले लिया, हमारे तमाम रोग अपने ऊपर उठा लिया। वचन ऐसा लिखा है कि हमें शैतान का सामना करना है। हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे थे याकूब की किताब में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, हम और आप कैसे सामना करें शैतान का? देखिए मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं इस संसार में फ्लैश यानी शरीर और आत्मा, ये दो बातों को हम लोग जानते हैं। और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे लोगों को आत्मा दिखाई देना वाजिब है। आत्मा लोग देख लेते हैं, कोई उसे भूत का नाम देता है तो कोई उसे क्या क्या नाम देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है
बताता है कि शैतान का सामना करो, लेकिन हम और आप अपने आप को निर्बल पाते हैं कि हम कैसे शैतान का सामना करें। मेरे प्रियो, तीसरा यूहन्ना उसका 1 से 3 पद को वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है, कि हमें कैसे बता रहा है कि हम लोग कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं। तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3 पद तक वहाँ पे लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी प्रार्थना की जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिसे तू सचमुच चलता है, जिस पर तू सचमुच चलता है, मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पे इस बात को ध्यान दे कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में उन्नति हम कैसे करेंगे? सब बातों में उन्नति हम कैसे करेंगे? मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, हमें अपना जो दिमाग है उसे सब परमेश्वर के सम्मुख रखना है। क्योंकि देखिए, जो दिमाग होता है वो इस तरह से एक बात है कि एक आपका जो रिन्यूड दिमाग होता है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। और बिशप टी.डी. जेक्स उस बात को सामने रखते हैं कि नथिंग इज एज पावरफुल एज अ रिन्यूड माइंड। और हमारा और आपका माइंड रिन्यू होता है, हमारा मानसिकता, हमारा दिमाग नया होता है परमेश्वर के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से। हमें अपने मानसिकता को जब हम जान जाते हैं कि वो परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा काम किया है, हमारा दिमाग रिन्यू होता है। और उस दिमाग को हम लोग रिन्यू जब हमारा हो जाता है, मेरे प्रियो, हम उन्नति करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या क्या करना है? हमारा जो दिमाग होगा, अगर हमारा दिमाग सही सोचेगा, अगर हमारा दिमाग हेल्दी रहेगा, हमारी भावनाएं हेल्दी रहेंगी, हमारे इमोशंस हेल्दी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, हमारी इच्छा शक्ति ताकतवर रहेगी, हमारे में अंदर हिम्मत रहेगी, वो हिम्मत जो परमेश्वर हमें देता है। और जब हमारे अंदर एक सही दिमाग रहेगा तो हम सही तरह से सोचेंगे, हम सही तरह से जिएंगे, और हम सही तरह से अपने आप को कंडक्ट करेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं, हम शैतान का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें शैतान का सामना करना है, हमें शैतान का सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो उस काठ पर लटकाया गया और वो शापित बना। और काठ पर कौन लटकाया गया मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह। उस काठ पर लटकाया गया, वो हमारे और आपके लिए शापित बना। उसने हमारे तमाम रोगों को ले लिया अपने और हमारे ऊपर। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम जैसे हर एक बात में उन्नति कर रहे हैं, जैसे अपने जिंदगी के किसी एक बात में हम जैसा उन्नति कर रहे हैं, वैसा ही हर जगह उन्नति करें। मेरे प्रियो, जैसा हमने इस वचन को पढ़ा कि तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय में हमने जब इस बात को पढ़ा कि जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, वैसे तू हर एक बात में उन्नति करता जा। मेरे प्रियो, हम जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया थोड़ा उल्टा चलती है। हम अपनी जिंदगी के हर एक भाग में उन्नति तो नहीं करते, लेकिन अपनी जिंदगी के किसी एक भाग में उन्नति कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर के वचन को आपके सामने उसी रूप से सामने रखना चाहता हूँ कि आप इस वक्त अपने जिंदगी के जिस भाग में बहुतायत से अच्छी उन्नति को कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस यीशु नासरी के नाम से, आप अपनी उस जिंदगी के हर एक भाग में आप वैसी ही उन्नति करती जाए। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी उन्नति कर रहे हैं और आपका आत्मिक जिंदगी जीरो है, आपका आत्मिक जीवन जीरो है, आपका पारिवारिक जीवन जीरो है, आपका मैरिटल लाइफ जीरो है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जैसा उन्नति अपने प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं, वैसी उन्नति आप अपने शादीशुदा जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं। वो जो खुद शाप बना हमारे लिए, उस काठ पर टंग कर वो तमाम शापों को उसने हमारे ऊपर ले लिया, हमारे और आपके गुनाहों को ले लिया और हमारे रोगों को ले लिया, ताकि हम और आप भले चंगे हो जाए। और यशायाह की किताब ऐसा कहती है
कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारे तमाम गमों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारी तमाम मशक्कतें अपने ऊपर उठा ली। वो हमारे ही गुनाहों के सबब से घायल किया गया, वो हमारे लिए मारा गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे तमाम शापों को, रोगों को, बीमारियों को, कमजोरियों को ले लिया, तो ऐसी कौन सी बात है जो हमें और आपको रोकती है कि हम परमेश्वर से प्रेम ना करें? और अगर हम और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दो बातें मेरे प्रियो। वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और दूसरी बात, जो उससे प्रेम रखते हैं अंत में सारी बातें उसके उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज आप कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे मेरे प्रियो? अंत में सारी बातें आपके हक में जाएंगी, आपकी भलाई के लिए होंगी। आज आप कैसी बातों से होकर गुजर रहे हो? अगर आप उससे प्रेम रखते हैं तो अंत में सारी वस्तुएं, सारी बातें, सारी परिस्थितियां अंत में आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, ये मेरे वचन नहीं है। मैं कुछ वचन आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर अंत करूंगा कि परमेश्वर अपने वचन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता है। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन को लेकर? परमेश्वर कहता है कि मैं अपने अहद को नहीं तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को नहीं बदलूंगा। यशायाह की किताब उसका 46 अध्याय 11 पद में ऐसा लिखा है, Indeed I have spoken it, I will bring it to pass. I have purposed it and I will also do it. मैं ही ने ये कहा है, मैं ही इसे वाकई में लाऊंगा, मैं ही ने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। यशायाह 55 अध्याय उसका 11 पद ऐसा कहता है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है, मुअस्सिर होगा। वचन कहता है यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय 8वां पद में, हाँ घास मुरझाती, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। लूका किताब उसका 21 अध्याय 33 पद ऐसा कहता है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। भजन संहिता उसका 138 अध्याय 2 पद ऐसा कहता है, फॉर यू हैव मैग्निफाइड योर वर्ड अबव ऑल योर नेम्स, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है मेरे प्रियो। उसने जब अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए श्राप बनाया, यानी वो श्राप अब हमारे ऊपर से हट चुका है, वो रोग हमारे ऊपर से हट चुका है, उस बीमारी का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उस बीमारी की आत्मा का हमारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। अब अगर अधिकार है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको जब वो महिमा दी, सारी बातें उसके अधिकार में रख दी। मेरे प्रियो, ऐसी कौन सी बात है जब परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आपको रोक रहा है? क्योंकि वो खुद आपके तमाम शापों को ले चुका है, आपके तमाम रोगों को ले चुका है, आपकी गरीबी को ले चुका है, आपके बीमारियों को ले चुका है, आपके रोगों को ले चुका है, आपके ताजा से ताजा गुनाहों को भी वो अपने ऊपर ले चुका है। आइए हम दुआ करें। हमारे महान जीवन अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आप स्तुति प्रशंसा महिमा तारीफ के योग्य हैं खुदावन। आप थे, आप हैं और आप हमेशा हमेशा तक रहेंगे पिता। और वचन कहता है खुदावन कि आप कभी नहीं बदलते,
आप युगानुयुग हर समान एक सा है पिता परमेश्वर। आप कभी नहीं बदलते हैं। वापसमानी जिंदा खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु, इस वक्त जब हम या परिवार हम सब पिता एक साथ मिलकर खुदावंद आपके इस हुजूरी में है, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपके उस प्रेम के लिए जो आपने उस क्रूस पर दिखाया, और आपने उस अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं उस आज्ञाकारिता के लिए जो खुदावंद आपने अपने बाप की आज्ञा मानकर आपने उस क्रूस की मृत्यु को भी, उस भयानक मृत्यु को भी आपने ले ली हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह एक एक कतरे खून के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, एक एक कतरे लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु कि खुदावंद उसी लहू से हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को, हमारे परिवार के हर एक सदस्य की जिंदगी को, उनकी जिंदगी के हर एक भाग को अपने पवित्र लहू के घेरे में रख लीजिए पिता। सर से लेकर पांव तक पिता हमें अपने पवित्र लहू में घेर लीजिए पिता। Cover us all under the blanket of your blood, Jesus Christ, Lord. अपने पवित्र लहू में घेर लीजिए प्रभु, अपने पवित्र लहू में घेर लीजिए प्रभु, अपने पवित्र लहू में घेर लीजिए प्रभु। खुदा और पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि खुदा इस वक्त जो ऑनलाइन हमें देख सुन रहे हैं पिता, वो कैसी बातों से होकर गुजर रहे हैं पिता। खुदा क्या कोई शाप उन पर है, क्या किसी तरह की बातें उन पर है पिता। खुदा और पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं पिता कि खुदावन आप दया करें पिता, आप अनुग्रह करें पिता। आप अन्यायी नहीं है पिता, बल्कि आप न्यायी परमेश्वर हैं। खुदा अय्यूब कहता है प्रभु परमेश्वर पिता कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। खुदा वो कहता है कि वो तो इतने बड़े बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक बरकतों के लिए धन्यवाद। बीमारियों को छुआ चंगा किया है पिता आपने पिता। इस वक्त अगर ऐसा कोई है पिता जो मन का रोगी है, जो तन से रोगी है, जो दिलो दिमाग से रोगी है, आप उसे चंगाई दें पिता परमेश्वर। अपने कील से छुए हुए हाथों को उन पर बढ़ाएं, आप उन्हें छुएं और चंगा करें प्रभु, आशीषित करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने हमारे तमाम शापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमें वापस उस शाप से गुजरना ना पड़े, ताकि हमें वापस ऐसी बातों से होकर गुजरना ना पड़े, बल्कि हम आशीष बन जाए पिता परमेश्वर, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोकेलिटी के लिए, अपने देश के राज्य के लिए पिता, और अपने देश के लिए भी पिता, पूरी जगत के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद के साथ सारी आदर में आपको देते हैं पिता। प्रार्थना विनती आपके बेटे खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बड़े नाम से चाहते हैं पिता। आप इधर से सुनिए, आप कबूल कीजिए पिता। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर रितेश जो है दुआ करें। मैं माफी चाहता हूँ पास्टर रितेश हमारे बीच में फिलहाल भी इस वक्त जो है वो नहीं है। मैं दुआ कर मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगा रवि भैया से कि वो इस बात को कंक्लूड करें, आज की सभा को कंक्लूड करें। Thank you, Jesus. Really, we heard a wonderful message this evening. Really, you can see it, you can feel it. Before we end this service, we have the same time and same place where we are here. Sing us. We should kneel down ourselves